Welcome all of you. So this is a video from exercise 4.3. Okay, I'm starting with question number 4. Okay, in from quadratic equations NCERT. Okay, so the question says the sum of the reciprocals of Rahman's age. Now Rahman is a person whose age, now here in this question only one person is there. There is only one person whose age we are going to talk about. So Rahman is a person whose age in years they have told 3 years ago. Okay, so it is either 3 years ago or 5 years from now. Okay, so Rahman's age 3 years ago or 5 years from now. Now the trick in these sums is always take the present age of, so take the present age of Rahman as x. Always take the present age as x. 3 years ago, how much was he? He was x minus 3. And 5 years hence, 5 years from now, he will be this much. Okay, so 3 years ago and 5 years from now, these are his two ages. Sum of their reciprocals of these two ages, okay, is equal to 1/3. So this is our equation. We have got the equation. Now what to do? 3 and then here I just brought this 3 this side, kept it outside the bracket. X plus 5 plus x minus 3. Why? Because the LCM is product of this into this. So x minus 3, x plus 5. That is equal to 1. Now I'll take this full thing that side. And here I will simplify a little bit. 3, this is 2x plus 2. And then this is, here if I take x minus 3 and x plus 5. Okay. Now how much is it? This comes to 6x plus, this is 6x plus 6. And this is x square minus 3x plus 5x minus 15. Which is x square plus 2x minus 15. That is equal to 6x plus 6. Okay, let me further work on this equation. So, what I will do here is, I will take all of them to one side and get the quadratic equation of this. So, x square, okay, I am taking everything to that side. 2x minus 6x is a minus 4x and minus 15 minus 6 is a minus 21. Okay. So here I have my new equation after simplification. Now here this is x square. I will do middle term factorization. So how much to do? This is 7 into 3. So minus 7x minus 7x plus 3x. Okay, on multiplying I get minus 21x square, and on adding I am getting the minus 4x. X minus 7 plus 3x minus 7 is equal to 0. Okay, so my two factors are this, x plus 3 is equal to 0. So x is equal to 7 or x is equal to minus 3. These are my two answers. But then had it been, अगर ये सीधा सिर्फ एक क्वेश्चन होता जिसको सॉल्व करना है तो आप ये दो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, रहमान का एज मांगा गया है आपसे. तो रहमान का एज अगर चाहिए आपको तो फिर आप तो इसको ले ही नहीं सकते क्योंकि ये तो नेगेटिव है. ओके, नेगेटिव एज तो हो नहीं सकता. तो x इज इक्वल टू 7 इज माई आंसर. तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years. Okay, present age of Rahman is 7 years. So this is our next question. In a class test, the sum of Shefali's marks in maths and English is 30. Okay, had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find their marks in both the subjects. So let her marks in maths be x. स्टेटमेंट को कभी भी ज़्यादा बड़ा नहीं कीजिए. let her marks in English
बी वाई। तो x plus y is 30. First condition, sum of Shefali's marks in English and maths is 30. Had she got 2 more in maths, okay, had she got 2 more in maths and 3 less in English, then the product multiplication, देखिए मैंने multiply किया है, would have been 210. अभी इसको मैं ऐसा तो इक्वेशन मैं सॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है, तो मुझे इसका हेल्प लेना होगा। तो फिर मैं x के जगह x इज इक्वल टू 30 माइनस वाई, वाई माइनस 30 नहीं लिख दीजिएगा, दिस इज 30 माइनस वाई प्लस 2, यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो मेरा पूरा इक्वेशन जो है ना वो आ गया एक ही, मेरा पूरा इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ गया, पूरा इक्वेशन अभी y में है। तो फिर यहाँ हो गया 32 माइनस वाई और इधर मुझे मिल गया y माइनस 3 विच इज़ 210। तो फिर 32y माइनस वाई स्क्वायर माइनस दिस इज 96 प्लस 3y इज 210। ओके, सो इसका अभी मैं इसको सारा एक साइड लूँगी और वाई स्क्वायर का साइन ऐसा लूँगी कि वाई स्क्वायर का साइन पॉजिटिव हो जाए। तो फिर अगर मैं वाई स्क्वायर को उस साइड लेती हूँ तो क्या हो जाता है, वाई स्क्वायर इधर 32 प्लस दिस, सो माइनस 35, इधर तो प्लस 35 था, उधर जाके माइनस 35 हो गया। ओके, माइनस 96 उधर जाके 210 प्लस 96, ये जो 96 है इधर जाता है 306 प्लस 306। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ, तो फिर देखती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या आता है। 2 1 5 3 3 5 1 17 एंड दिस इज 3। तो फैक्टर्स क्या हो सकता है, एक तो 17 है और दूसरा 18। 17 प्लस 18 विल बी अ 35। तो वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 17y प्लस 306 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये साइंस देख लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 306 वाई स्क्वायर। ओके, तो अभी इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट करती हूँ। y माइनस 18 है ना, y माइनस 18, इसका ग्रुपिंग से माइनस 17 y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी इसका y माइनस 18 एंड y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 17, कोई भी एक हो सकता है। तो फिर अगर मैं y इज इक्वल टू 18 लेती हूँ, अगर मैं y को 18 लेती हूँ, y अगर 18 लिया मैंने, तो यहाँ अगर सब्सटीट्यूट किया तो x का वैल्यू आया 30 माइनस 18 12। ओके, अगर y को 17 लिया और यहाँ से सब्सटीट्यूट किया तो x का वैल्यू आया 13। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें दो सेट ऑफ आंसर्स है, मतलब मैथ्स के ही 12 अगर लाती है तो इंग्लिश में 18 लाई होगी, और अगर मैथ्स में 13 लाई है तो इंग्लिश में शेफाली को 17 ही लाना है। तो इन दोनों केसेस में कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं। तो ये हो गया मेरा दो आंसर्स। तो आप लिखेंगे कैसे, मैथ्स 12 इंग्लिश 18 और मैथ्स 13 इंग्लिश 17। ओके, तो आप ऐसे आंसर को फाइनली लिखेंगे। यहाँ क्या क्वेश्चन है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये हो गया 6th क्वेश्चन। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर दैन द शॉर्टर साइड। ड्राइंग ज़रूर बनाइए। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर, शॉर्टर साइड को x ले लेते हैं, एंड डायगोनल इज x प्लस 60 एंड if the longer side is 30 meters more than the shorter side, so this is x plus 30. तो ऐसे भी hypotenuse is the longest side, यहाँ भी हमें दिख रहा है hypotenuse is the longest side of the triangle. Okay, then find the sides of the field. तो ये तो rectangle इसने तो बता ही दिया कि ये एक रेक्टेंगल है, तो फिर हम सीधे पाइथागोरस थ्योरम पे आ जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो x प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 square, which is x square plus 900 plus 60
x is x plus 60 स्क्वेयर। तो फिर 2x स्क्वेयर प्लस 900 प्लस 60x, इधर भी आइडेंटिटी यूज़ कर ही लेते हैं, x स्क्वेयर प्लस 3600 प्लस 120x। मैंने लगाया है a प्लस बी होल स्क्वायर ऑन दिस साइड और इसमें भी a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया है। ओके, तो अभी मैं सारा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने वाली हूँ। तो एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ बच जाता है एक्स स्क्वायर, 120 को सब्ट्रैक्ट करने से -60x, 120x एंड 60x -60x। ठीक है, ये हो गया लाइक टर्म्स, इसी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3600 इफ़ यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 900, ठीक है, तो फिर इधर हो जाएगा -2700, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसको मैं ठीक से लेफ़्ट साइड में लिख लेती हूँ, ऐसे तो राइट साइड में भी करने से रॉन्ग नहीं है, फिर भी जो नॉर्म है उसी को फॉलो करती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज़ 30 एंड 90, -90x प्लस 30x -2700 विच इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 90 प्लस 30x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गया x माइनस 90 x प्लस 30, ओके, दैट इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, x का एक वैल्यू जो है वो आ गया 90, x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू -30। अब हम तो चल रहे थे लेंथ लेके, और लेंथ में -30 इस सब में नहीं हो सकता, ट्रायंगल का साइड कभी भी -30 नहीं हो सकता है। तो फिर हमें शॉर्टेस्ट साइड 90 ही लेना है और लॉन्गेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड हो गया, शॉर्टर साइड यानी कि ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हो गया 90 मीटर्स और लॉन्गेस्ट साइड हो गया, लॉन्गेस्ट साइड हो गया 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर्स हो गया। ओके, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आंसर को प्लीज़ ऐसा लिखिए क्योंकि बोर्ड्स में उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी ही रहेगी। यूनिट भी लिखिए, लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड भी लिखिए। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अगले वीडियो में मैं 7, 8, 9 ये तीनों सम्स लूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलें। प्लेलिस्ट भी आप ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको 10th के फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों के अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ओके देन, बाय ऑल ऑफ यू।